అందరికీ నమస్కారం. आप सभी को ब्रह्मश्री तटवर्ती राघवराव सर का नमस्कार। గురువు గారు పత్రి గారికి ఒక్కసారి మనం ధన్యవాదాలు చెప్పుకుందాం. परम गुरु ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को भी धन्यवाद करते हैं। మనం గత 83 ఎపిసోడ్ నుంచి ఒక్క విషయమే చెప్పాం. हम पिछले 83 एपिसोड से एक विषय के ऊपर चर्चा कर रहे थे। ఈ రోజు 84వ ఎపిసోడ్. आज का यह एपिसोड 84वां है। ఈ సందర్భంగా బ్రహ్మ జ్ఞానం గురించి కొన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకుంటున్నాం. इसी संदर्भ में ब्रह्म ज्ञान के बारे में कुछ बातें हम सीख रहे थे। ఇది మూడవ పార్ట్. यह तीसरा भाग है। సహజంగా सहज रूप से అందరూ దేవుళ్ళు గొప్పవారని అనుకుంటున్నారు. सभी लोग देवों को महान समझते हैं, కానీ దేవుళ్ళ కంటే लेकिन देवों से बढ़कर పరబ్రహ్మ చాలా గొప్పవాడు. परब्रह्मा बहुत ही महान है। ఎందుచేతనంటే क्योंकि పరబ్రహ్మ మూల చైతన్యం, परब्रह्म मूल चैतन्य है, ఆది నుంచి ఉన్నవాడు. आदि से उपस्थित वे हैं। దేవుళ్ళు మూల చైతన్యం నుంచి ఉద్భవించినటువంటి అంశాలు మాత్రమే. देव उस मूल चैतन्य से उद्भवित అంశాలు మాత్రమే. अंश मात्र है। దేవుళ్ళు తల్లి గర్భాల్లో జన్మించారు, देवों ने माता के गर्भ से जन्म लिया है పరమపదించారు కూడా. और परम पद भी प्राप्त कर चुके हैं। దేవుళ్ళందరికీ వేరు వేరు పేర్లు ఉన్నాయి, देवों सभी देवों का अलग अलग नाम है, రూపాలు ఉన్నాయి, रूप है, భార్యలు ఉన్నారు. पत्नियां है, కానీ పరబ్రహ్మ ఒక్కడే. लेकिन परब्रह्मा अकेले ही है। ఆయనకు నామరూపాలు లేవు. उनका नाम रूप नहीं है। ఈ దేవుళ్ళందరూ ये सभी देव పూర్ణ జ్ఞానాన్ని పొంది पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके పూర్ణాత్మలుగా ఎదిగిన వారు. पूर्णात्मा बन चुके हैं। ఈ విషయమే ఈశావాస్య ఉపనిషత్తులో చెప్పబడింది. यही बात ईसावासा उपनिषद में कहा गया है। ఆ శ్లోకం ఏమిటంటే, वह श्लोक ये है, ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవ వశిష్యతే. అది ఆ శ్లోకం. यह वो श्लोक है। దీని యొక్క తాత్పర్యం. इसका तात्पर्य बता रहे हैं। అది అంటే బ్రహ్మం, वह मतलब ब्रह्म పూర్ణమే, పూర్ణం. पूर्ण है। ఓం పూర్ణమదః అంటే అది అంటే బ్రహ్మం పూర్ణం. ओम पूर्णमदः मतलब ब्रह्म ही पूर्ण है। అది అది वह ब्रह्म ही पूर्ण है। పూర్ణమిదం అంటే ఇది, ఇది అంటే ఆ పూర్ణం నుంచి ఉద్భవించిన అంశాత్మ. पूर्णम इदम मतलब यह मतलब उस पर ब्रह्मा से जन्म लिया हुआ अंश आत्मा है अथवा उद्भव हुआ अंश आत्मा है। అంటే జీవుడు, मतलब जीव, జీవుడు కూడా పూర్ణమే. मतलब जीव भी पूर्ण ही है। ఈ జీవుడు ये जीव జ్ఞానం చేత ज्ञान के वजह से పూర్ణత్వాన్ని సాధించిన పక్షంలో पूर्णत्व को प्राप्त करने के पक्ष में పూర్ణమైన పరమాత్మగా శేషిస్తుంది. पूर्ण ऐसे परमात्मा के जैसा रहता है। శేషిస్తుంది అంటే మిగులుతుంది, తయారవుతుంది. पूर्ण ऐसा परमात्मा के रूप में रह जाता है, मतलब शेष रहता है। అంటే బ్రహ్మంగా విలసిల్లుతుంది. मतलब ब्रह्मा के जैसा रह जाता है, అంటే పూర్ణాత్మగా తయారవుతుంది. मतलब पूर्णात्मा के जैसा बन जाता है, అంటే సహ సృష్టికర్త అవుతుంది. मतलब सह सृष्टिकर्ता बन जाता है। ఈ సహ సృష్టికర్తనే కో క్రియేటర్ అని కూడా అంటారు. इसी सह सृष्टिकर्ता को को क्रिएटर भी कहते हैं। ఏ అంశ ఆత్మ అయినా సరే कोई भी अंश आत्मा ఆ స్థితికి ఎదగవలసిందే. उस स्थिति तक बढ़ना ही होता है। మనమంతా కూడా అలాంటి అంశ ఆత్మలమే. हम सब भी ऐसे ही अंश आत्मा है, అంటే కాబోయే దేవుళ్ళమే. मतलब बनने वाले भगवान देव हैं, मतलब हम भी देव बनने वाले हैं। ప్రస్తుతం మనల్ని మనం
మానవులుగా భావిస్తున్నాం. प्रस्तुत समय में हम अपने आप को मानव रूप में अपने आप को मानव मान रहे हैं। మానవులమైన మనము मानव रूपी हम అటువంటి బ్రహ్మస్థితి పొందాలంటే, ऐसी ब्रह्म स्थिति को पाने के लिए, పూర్ణాత్మ కావాలంటే पूर्णात्मा बनने के लिए మనసు శూన్యం చేసుకోవాలి. मन को शून्य बनाना है। మనసును శూన్యం చేసుకునే మార్గమే मन को शून्य बनाने वाला मार्ग ही పత్రిజీ మనకిచ్చినటువంటి पत्री जी ने हमें दिया हुआ శ్వాస మీద ధ్యాస మార్గం. श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करने वाली साधना मार्ग। ఎవరైతే ఈ శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచి ధ్యానం చేస్తారో जो लोग इस श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करने वाली साधना का ध्यान करते हैं, వారు మనసును శూన్యం చేసుకోగలుగుతారు. वे मन को शून्य बना सकते हैं। ఈ మనసును శూన్యం చేసుకోవడం 3 రకాలు. इस मन को शून्य बनाने के 3 प्रकार है। ఒకటి శూన్యము, पहला शून्य, 2 పరిశూన్యము, दूसरा परिशून्य, 3 మహాపరిశూన్యం. तीसरा महापरिशून्य। శూన్యము అంటే शून्य का मतलब మనసు గాలిలా తయారవుతుంది. मन वायु जैसा बन जाता है। అలాంటి వారు ऐसे लोग అహం బ్రహ్మాస్మి अहम ब्रह्मास्मि అన్న వేదవాక్కు नाम का वेद वाक्य को అనుభవంలోకి తెచ్చుకుంటారు. अनुभव में लाते हैं। దీనినే నిర్వాణము అని కూడా అంటారు. इसी को निर्वाण भी कहते हैं। ఈ శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచి इस श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करके ఇంకా తీవ్రాతి తీవ్రంగా ధ్యానం చేస్తే और ज्यादा गहराई पूर्वक ध्यान करते हैं, పరిశూన్య స్థితిలోకి వెళ్తారు. परिशून्य स्थिति में पहुंच जाते हैं। వారి మనసు ఆకాశంలా తయారవుతుంది. उनका मन आकाश जैसे बन जाता है। అటువంటి వారు ऐसे लोग తత్వమసి तत्वमसि అన్న వేదవాక్కును नाम का वेद वाक्य को అనుభవంలోకి తెచ్చుకుంటారు. अनुभव में लाते हैं। అటువంటి వారిని ऐसे लोगों को పరినిర్వాణం పొందిన వారు परिनिर्वाण प्राप्त कर चुके हैं అంటారు. ऐसा बोलते हैं। ఎవరైతే ఇంకా తీవ్రాతి తీవ్రంగా సాధన చేస్తారో जो लोग और भी अधिक गहराई पूर्वक साधना करते हैं, వారి మనసు మహాపరిశూన్యమైపోతుంది. उनका मन महापरिशून्य बन जाता है। అంటే వారి మనసు చైతన్యంలా తయారైపోతుంది. मतलब उनका मन चैतन्य रूप जैसा बन जाता है। అంటే చైతన్యంలో లీనమైపోతుంది. मतलब चैतन्य में लीन हो जाता है। అటువంటి వారు ऐसे लोग సర్వం కల్విదం బ్రహ్మ सर्वम खल्विदम ब्रह्मा, సర్వం కల్విదం బ్రహ్మ सर्वम खल्विदम ब्रह्मा అన్న వేదవాక్కును नाम का वेद वाक्य को అనుభవంలోకి తెచ్చుకున్నవారు अनुभव में ला चुके हैं, अनुभव में लाने वाले बन जाते हैं। అటువంటి వారిని ऐसे लोगों को మహాపరినిర్వాణం महापरिनिर्वाण పొందిన వారిగా प्राप्त कर चुके ऐसा చెప్పుకోవచ్చు. बोल सकते हैं। వారిని బ్రహ్మజ్ఞాని అని కూడా అంటారు. उनको ब्रह्म ज्ञानी भी कहते हैं। వారికి తెలియందంటూ ఏమీ లేదు. उनको पता नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। సమస్తము తెలుసుకున్నవారు, सब कुछ जानने वाले बन जाते हैं। సమస్త సందేహాలు నివృత్తి చేసుకున్నవారు. सभी संदेहों से मुक्ति पाने वाले हैं। వారినే పూర్ణాత్మ అని కూడా అంటారు. उन्हीं को पूर्णात्मा भी कहते हैं। సహ సృష్టికర్త అని కూడా అంటారు. सह सृष्टिकर्ता भी कहते हैं। అంటే సృష్టికర్త मतलब सृष्टिकर्ता, అంటే పరబ్రహ్మ मतलब परब्रह्म। ఎలా సృష్టి చేశాడో जैसे सृष्टि किया है అలాగే वैसा ही సృష్టి చేయగలుగుతాడు. सृष्टि कर पाएंगे। అందుచేత इसीलिए పూర్ణాత్మ కావడం అన్నది पूर्णात्मा बनना చాలా గొప్ప విషయం. बहुत ही महान
बात है, बहुत बहुत ही महान विषय है। మనందరం కూడా हम सब भी ఈ శ్వాస మీద ధ్యాస ద్వారా इसी श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करने वाली साधना के द्वारा ఆ స్థితికి చేరుకోవలసిన వాళ్ళమే. उस स्थिति तक पहुंचने वाले ही हैं, చేరుకుంటాం కూడా. पहुंच भी जाएंगे। అందుకే ఈ మార్గంలోకి వచ్చాం. इसीलिए इस मार्ग में आए हैं। ప్రతిరోజు ఇంత శ్రద్ధగా ధ్యానం చేస్తున్నాం. प्रतिदिन इतनी श्रद्धा से ध्यान कर रहे हैं। భూమి మీద మానవుడు సాధించవలసింది ఇదే. धरती पे मानव को यही प्राप्त करना है, పురుషుడు కానీ స్త్రీ కానీ, चाहे पुरुष भी हो या स्त्री हो, ధనవంతుడు కానీ పేదవాడు కానీ, अमीर या गरीब भी हो सकता है, అధికారం ఉన్నవాడు కానీ లేనివాడు కానీ, अधिकार में रहने वाला भी हो सकता है, नहीं रहने वाला भी हो सकता है, ఎవరైనా సరే चाहे कोई भी हो, ఆ స్థితికి చేరుకోవాలి. उस स्थिति तक पहुंचना है। మనమంతా కూడా हम सब भी ఆ స్థితి చేరుకోవడానికి उस स्थिति तक पहुंचने के लिए చాలా దగ్గరగా ఉన్నాం. हम सब भी उस स्थिति के बहुत समीप हैं। అందుకే నేను పదే పదే చెప్తున్నాను, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, మనమంతా हम सब 350 జన్మలు దాటి ఉన్నామని. 350 जन्म पार कर चुके हैं। అటువంటి వారే ऐसे लोग ही ఇంత శ్రద్ధగా ధ్యానం చేస్తారు. इतनी श्रद्धा से ध्यान करते हैं। మనం ఇంకా శ్రద్ధ చూపెట్టినట్లయితే यदि हम और श्रद्धा के साथ में रहते हैं तो ఇంకా తొందరగా और अधिक त्वरित गति से ఆ స్థితిని సంపాదిస్తాం. उस स्थिति को पा सकते हैं। మన జన్మని ధన్యం చేసుకుంటాం. हमारा जन्म को धन्य कर सकते हैं। అంటే దుఃఖం నుంచి मतलब दुख से శాశ్వతంగా బయటపడతాం. शाश्वत रूप से बाहर आ पाएंगे। శాశ్వత ఆనంద స్థితిని మనం పొందుతాం. शाश्वत आनंद स्थिति को हम प्राप्त कर पाएंगे। మరి ఇటువంటి అద్భుతమైన మార్గాన్ని तो इतना अद्भुत मार्ग को మనకు అందించిన हम तक पहुंचाने वाले బ్రహ్మర్షి పత్రి గారికి ब्रह्मर्षि पत्री जी को ఒక్కసారి మనం ధన్యవాదాలు చెప్పుకుందాం. एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। థ్యాంక్ యూ. धन्यवाद। చూడు, यस सर। तो इस तरह से आज का गुरु जी का यह संदेश यहाँ पे समाप्त होता है। इस संदेश के ऊपर जिसको भी अपना अभिप्राय व्यक्त करना है तो कृपया हैंड रेज करेंगे। నిఖిల్ నిఖిల్ ఉన్నారు చూడు, చిరంజీవి. यस सर। हाँ, नमस्ते निखिल जी, अपने आप को अनम्यूट करेंगे। आपको प्रणाम ब्रह्म ऋषि जी। मेरे को जो आपने श्लोक बोला है पूर्ण पूर्ण मिदम वाला, ये मुझे पूरी तरीके से समझ में नहीं आया है। Shall I tell you once again? This slok is from Isavasya Upanishad. ईशावास उपनिषद। यस सर। Many people, they say this sloka as a pradhana. यस सर। You write it down. यस सर। Om Purna Madaha ओम पूर्ण मदः। Purna Midam यस सर। Purnat यस सर। Purna Mudichyate यस सर। Purnasya यस सर। Purna Madaya यस सर। Purna Meva यस सर। Vasishyate. शिष्यते। यस सर। This is separate lines, sir. Purnasya Purna Madaya is another Yes. line. यस सर। The Tatparya. यस सर। చిరంజీవి ఒక్కసారి చెప్తావా తాత్పర్యాన్ని? यस सर। అది అంటే బ్రహ్మం పూర్ణం. वह मतलब ब्रह्मा पूर्ण है। मतलब ब्रह्म पूर्ण है। यस सर। ఇది అంటే ఆ పూర్ణం నుండి ఉద్భవించిన इधि मतलब वह पूर्ण से उद्भव हुआ। पूर्ण से उद्भव हुआ है। वह అంశాత్మ. अंश आत्मा है। अंश आत्मा है। అంటే జీవుడు కూడా పూర్ణమే. मतलब जीव भी पूर्ण है। यस यस सर। ఈ చిన్న చిన్న వివరణ మీకు ఇక్కడ. एक छोटा सा विवरण दे रहे हैं। जी। మనమంతా కూడా జీవుళ్ళం. हम सब भी जीव हैं। जी। ఆ పూర్ణాత్మ నుంచి విడిపడినటువంటి అంశాలమే మనమంతా. उस पूर्णात्मा से बिछड़े हुए अंश आत्मा है। ఈ శరీరంలో ప్రవేశించడం వల్ల జీవుడు అంటున్నారు. इस शरीर में प्रवेश करने की वजह से जीव कहते हैं। అండర్స్టాండ్? यस सर। నెక్స్ట్, ఈ జీవుడు यह जीव या జ్ఞానం చేత ज्ञान
हाँ, ये जीव ज्ञान हम्म, के द्वारा ज्ञान के द्वारा పూర్ణత్వాన్ని पूर्णत्व को जी సాధించిన పక్షంలో प्राप्त करने के पक्ष में जी పూర్ణమైన పరమాత్మగా पूर्ण ऐसे परमात्मा के रूप में अथवा पूर्ण ऐसे परमात्मा जैसे తయారు बन जाता है। जी जी सर అంటే బ్రహ్మంగా తయారవుతుంది. मतलब ब्रह्म जैसा बन जाता है, जी అంటే పూర్ణాత్మ అవుతుంది. मतलब पूर्णात्मा बन जाता है, पूर्ण आत्मा में जी అంటే సహ సృష్టికర్త అవుతుంది. मतलब सह सृष्टिकर्ता बन जाता है। जी को క్రియేటర్ అంటారు. को क्रिएटर कहते हैं। जी ఇది ఈ Yes, sir. శ్లోకం యొక్క తాత్పర్యం. यह इस श्लोक का तात्पर्य है। थैंक यू सर थैंक यू सर ఉపనిషత్తులో ఈ శ్లోకాన్ని తెలియజేయడం జరిగింది. उपनिषद में इस श्लोक को बताया गया है। जी దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే इससे हमें ये समझना है ఆ పరబ్రహ్మ నుంచి उस पर ब्रह्मा से విడివడినటువంటి అంశలమే మనం. हमें यह अलग- समझना है एक बार उस पर ब्रह्मा से अलग हुए अंश आत्माएं हैं। परम నైనా सर, విడివడిన అంశలమే మనం. उस पर ब्रह्मा से अलग हुए अंश ही हम है। ఆ, అది जी అంచేత इसीलिए ఆ పరబ్రహ్మ उस पर ब्रह्मा మనము ఒకటే. इसलिए वह पर ब्रह्मा और हम एक ही है। ओके ఆయన పూర్ణమే, మనము పూర్ణమే. वे भी पूर्ण है, हम भी पूर्ण है। जी మీకు దీనికి ఉదాహరణ చెప్తాను. इसका एक उदाहरण बता रहे हैं। जी మహాసముద్రంలోంచి ఒక గ్లాసుడు నీళ్లు మనం తీసాం. महासागर से एक ग्लास पानी हम निकाल लेते हैं। जी ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, సముద్రంలో నీరు గ్లాసులో నీరు ఒకేలా ఉంటాయా, వేరువేరుగా ఉంటాయా? तो अभी आप बताइए, उस महासागर का पानी और ग्लास का पानी एक जैसा रहता है या अलग अलग रहता है? బోలియే సార్. एक जैसा रहता है सर దాని క్వాలిటీ దీని క్వాలిటీ ఒకే రకంగా ఉంటుంది. उसका क्वालिटी और इसका क्वालिटी एक जैसा ही रहता है। जी అదే విధంగా उसी तरह పరబ్రహ్మ पर ब्रह्मा మనము हम ఒకటే. एक ही है। जी जी थैंक यू सर సార్ మనం Thank you. అంటే మనము అంటే దేహం కాదు, ఆత్మ అని తెలుసుకోవాలి. हम मतलब शरीर नहीं, आत्मा है, ये जानना है। जी ఇది అర్థం కావడానికి ఇంకొక ఉదాహరణ కూడా చెప్తారు इसे समझाने के लिए एक और उदाहरण भी बताते हैं పెద్దలు. बुजुर्ग। जी అఖండ ఆకాశం, సృష్టి అంతా వ్యాపించి ఉన్నదాన్ని అఖండ ఆకాశం అంటారు. पूरी सृष्टि में व्याप्त हुआ आकाश को अखंड आकाश कहते हैं। ఘటము అంటే కుండ. घटम मतलब मटका। जी తయారు చేసినప్పుడు जब बनाते हैं ఆ కుండలో కూడా కొంత ఆకాశం ఉంటుంది. उस मटके में भी थोड़ा आकाश रहता है। जी దాన్ని ఘటాకాశం అంటారు. उसे घटाकाश कहते हैं। సృష్టి అంతా ఉన్నది అఖండ ఆకాశం. पूरी सृष्टि में जो है वह अखंड आकाश है। ఈ అఖండ ఆకాశము ఈ ఘటాకాశము రెండు ఒకటే. वह अखंड आकाश और ये घटाकाश दोनों एक ही है। जी ఈ ఘటం ఉన్నంతసేపు ఇది వేరుగా అనిపిస్తుంది. जब तक ये मटका रहता है तब तक ये अलग रूप से दिखाई देता है, కానీ రెండు ఒకటే. लेकिन दोनों एक ही है। जी అలాగే उसी तरह ఆ మూలాత్మ, मूल आत्मा ఈ శరీరంలో ఉన్న అంశాత్మ इस शरीर में बसा हुआ अंश आत्मा రెండు ఒకటే. दोनों एक समान है। जी ఎప్పుడైతే ఈ ఘటం పగిలిపోతుందో जब ये मटका टूट जाता है जी రెండు ఆకాశాలు ఒకటైపోతాయి. दोनों आकाश एक बन जाते हैं। जी ఎప్పుడైతే ఈ శరీరము మనసు శూన్యమైపోతాయో जब ये शरीर और मन शून्य बन जाता है जी అప్పుడు మనం కూడా ఆ పరబ్రహ్మ అయిపోతాం. तभी हम भी वह पर ब्रह्मा जैसा बन जाते हैं। ఆ శక్తులన్నీ మనము ప్రదర్శించగలుగుతాం. उन सभी शक्तियों को हम भी प्रदर्शित कर सकते हैं। అలా ప్రదర్శించే వారినే దేవుళ్ళు అంటారు. उस तरह से
प्रदर्शित करने वालों को ही देव कहते हैं। శ్రీకృష్ణుడు, श्री कृष्ण, శ్రీరాముడు, श्री राम, బుద్ధుడు, बुद्ध, జీసస్, जीसस, మహమ్మద్, मोहम्मद, గురునానక్, गुरु नानक, మహావీర్, महावीर, పత్రిజీ पत्री जी, అంతా అలాంటి వారే. सब ऐसे ही है। जी మనమంతా కూడా हम सब भी అలా తయారవుతున్న వారమే. ऐसा ही बन रहे हैं। అందుకే ఈ శ్వాస మీద ధ్యాస ధ్యానంలోకి వచ్చాం. इसीलिए इस श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करने वाली साधना मार्ग में आए हैं। ఈ విషయమే यही विषय జీసస్ जीसस చెప్పడం జరిగింది. ने यही कहा विषय। है। हाँ यही विषय जीसस ने भी कहा है। జీసస్ క్రైస్ట్ यस सर। ఆయన ఏమన్నాడంటే, उन्होंने ये कहा है, నేను నా తండ్రి ఒకటే. मैं और मेरे पिता एक ही है। నేను जी మీరు ఒకటే. मैं और आप एक ही हो। కొంచెం రిపీట్ చేయను, ఆయన రాసుకోవడానికి బాగుంటుంది, అలా అర్థమవుతుంది వాళ్ళకి. చాలా టఫ్ సబ్జెక్ట్ ఇది, ఏంటనుకుంటున్నావు? यस सर। నేను మీరు ఒకటే. मैं आप एक ही हो। जी జీసస్ అంటే అంశాత్మ. जीसस का मतलब अंश आत्मा। जी ఆయన తండ్రే మూలాత్మ అంటే పరబ్రహ్మ. उनके पिता ही मूल आत्मा है, मतलब पर ब्रह्मा है। ఒకసారి చెప్పు. उनके पिता ही मूल आत्मा मतलब पर ब्रह्मा है। जी పరబ్రహ్మ అయిన पर ब्रह्मा बने ऐसा అంశాత్మ అయిన జీసస్, अंश आत्मा जीसस, జీవుడైన మనము, జీవులమైన మనము जीव बने हम, అంతా ఒక్కటే. सब एक ही है। ఇదే జీసస్ యొక్క సందేశం. यही जीसस का संदेश है। जी सर। ఈ విషయాలన్నీ మన జ్ఞానం పెరిగే కొద్దీ బాగా అర్థమవుతాయి. यह सभी विषय जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है तब हमें समझ में आते हैं। ఇవన్నీ అర్థం కావాలి అంటే ये सभी को समझने के लिए ఉపనిషత్తులన్నీ బాగా చదవాలి. सभी उपनिषद को गहराई पूर्वक पढ़ना है और समझना है। పురాణాలు చదవాలి, पुराणों को पढ़ना है, భగవద్గీత చదవాలి, भगवत गीता पढ़ना है, వేదాల సారం కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. वेदों का सार भी समझना है। అప్పుడే ఈ జ్ఞానం అంతా అర్థమవుతుంది. तब ही यह पूरा ज्ञान समझ में आएगा। ఈ జ్ఞానం పొందడానికే इस ज्ञान को पाने के लिए పత్రిజీ पत्री जी ఈ ధ్యానాన్ని మనకు బోధించారు. इस यह ध्यान हमें बताए हैं। అంతేకాని इतना ही है, लेकिन రోగాల కోసం ధ్యానం చెప్పల, बीमारियों के लिए ध्यान नहीं बताया है, కోరికల కోసం ధ్యానం చెప్పల. इच्छाओं के लिए ध्यान नहीं बताया है। ఆయన పత్రిజీ वे पत्री जी జ్ఞానం కోసమే ధ్యానం చేయమన్నారు. ज्ञान के लिए ही ध्यान करने के लिए कहा है। ఇది అర్థం కాక इसे ना समझ के ఎంతో మంది अनेक लोग రోగాల కోసమే ధ్యానం చేస్తున్నారు. बीमारियों के लिए ही ध्यान कर रहे हैं। అటువంటి వారు ऐसे लोग చాలా అజ్ఞానంలో ఉన్నట్టే లెక్క. बहुत ही अज्ञान में ही है, ऐसा मान सकते हैं। పత్రిజీ బోధించిన पत्री जी के द्वारा बताया गया ఇంతటి అద్భుతమైన బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని इतना अद्भुत ब्रह्म ज्ञान को చాలా కొద్ది మందే తెలుసుకోగలరు. बहुत ही कम लोग ही समझ पाते हैं। जी सर। అందుచేత इसीलिए మన పిరమిడ్ సొసైటీలో हमारे पिरामिड सोसाइटी में ధ్యానం చెప్పేవారందరూ ध्यान सिखाने वाले सभी జ్ఞానం తెలిసిన వారు కాదు, ज्ञान समझने वाले नहीं हैं, జ్ఞానం బోధించలేరు. ज्ञान नहीं बता सकते हैं। కానీ మానవుడు పొందవలసింది జ్ఞానమే. लेकिन मानव को जो पाना है वो ज्ञान ही है। అదే పత్రిజీ బోధించేది. यही पत्री जी ने बताया है। థ్యాంక్ యూ సార్. थैंक यू सो मच सर।
थैंक यू सो मच। धन्यवाद निखिल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। अंडरस्टूड सर निखिल जी? Yes, sir. Very clearly, very nicely and very clearly. Thank you so much. This is the highest knowledge, sir. Yes, sir. Observation of breath is not a ordinary sadhana. Yes. Highest sadhana. And it is a true that people do it only for the sake of health. Yeah, they do it only for the sake of health. They don't do it for the sake of gyan. Sake of health and their wants. Yes. They have so many Desire. problems and all these things. Thank you. Thank you so much. I should. आयुष ले सर। आयुष ले रहा सर। गीता मैडम उन्नारा? यस सर, गीता मैडम उन्नार। नमस्ते गीता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते तटोती राजाराव सर, आत्मवंदन सर, चिरंजीवी सर आपको भी आत्मवंदन। सर आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय आपने बताए। मैंने ये श्लोक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते बहुत बार सुनी हूँ। आप जैसे कह रहे हैं कि ये प्रेयर जैसे बताते लोग कहते हैं, मैंने ठीक वैसे ही सुना, लेकिन इसमें इतना अर्थ है मुझे आज ही समझ में आया। आगे बढ़ूं सर? ओके। आगे बताऊं? ओके। हाँ, तो आपने श्वास के ऊपर ध्यान देना कितना इम्पोर्टेंट है, पत्री जी ने जो हमें सिखाया है, हम उसी पे मन लगा के ध्यान श्वास को केंद्रित करके रोज तीव्र ज्ञान करना चाहिए, रोज दिन भर दिन बढ़ाना चाहिए। हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन हमको तीव्र ज्ञान बढ़ाना है। इस तीव्र ज्ञान बढ़ाने से क्या होता है आपने बताया, मन शून्य बना सकते हैं। और इस मन का शून्य बनाने का भी 3 प्रकार आपने बताए हैं। पहला शून्य, दूसरा परिशून्य और तीसरा महापरिशून्य। तो शून्य का मतलब मैं डिटेल में बताऊं सर? ओके। शून्य का मतलब मन वायु जैसा बन जाता है। ऐसे लोग अहम ब्रह्मास्मि नाम का वेद वाक्यों का अनुभव में लाते हैं। सो इसको निर्वाण भी कहते हैं। सो इस श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करके और गहराई में पूर्वक ध्यान करेंगे तो परिशून्य स्थिति हम पहुंच सकते हैं। अभी तक मैंने सुना है सभी सीनियर मास्टर से महापरिशून्य, शून्य, महापरिशून्य, लेकिन आज ही इसका मतलब मुझे जाना। देन जो परिशून्य स्थिति में पहुंचते हैं उनका मन आकाश जैसे बन जाता है। ऐसे लोग तत्वमसि नाम का वेद वाक्यों को अनुभव में लाते हैं। ऐसे लोगों को परिनिर्वाण प्राप्त कर चुके हैं ऐसा भी कहते हैं। तीसरा, जो कोई लोग और भी अधिक गहराई पूर्वक ध्यान करेंगे तो उनका मन महापरिशून्य बन जाते हैं, मतलब उनका मन चैतन्य रूप में बन जाते हैं। मन चैतन्य में ही लीन हो जाते हैं। सब मुझे पता नहीं मैं कब इस स्थिति में पहुंचूंगी, लेकिन जरूर प्रयत्न करूंगी। ऐसे लोग सर्वम खल विदम ब्रह्मा नाम कर वेद वाक्य को अनुभव में लाने वाले बन जाते हैं। आई रिपीट वंस अगेन, मन चैतन्य में लीन हो जाते हैं। ऐसे लोग सर्वम खल विदम ब्रह्मा खलविदम, या आई करेक्ट माई सेल्फ, सर्वम खलविदम ब्रह्मा नाम का वेद वाक्य को अनुभव में लाने वाले बन जाते हैं। ऐसे लोगों को महापरिनिर्वाण प्राप्त कर चुके हैं हम बोल सकते हैं। उनको महाब्रह्म ज्ञानी भी कहते हैं। उनको पता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्हें सब जानते हैं और सब कुछ जानने वाला बन जाते हैं। सभी संदेहों से भी वो मुक्त पाने वाले होते हैं। उन्हीं को पूर्णात्मा कहते हैं। मैंने बहुत बार पूर्णात्मा सुना है, आज ठीक तरह से मालूम पड़ा। पूर्णात्मा यानी सह सृष्टिकर्ता, उनको को क्रिएटर भी कहते हैं। मतलब सृष्टिकर्ता मतलब पर ब्रह्मा। तो आप स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छी तरह से आज आपने समझाए सर। जैसे सृष्टि क्रिया है वैसा सृष्टि कर पाएंगे। जब ऐसे सृष्टि वो पर ब्रह्म ही दूसरा सृष्टि भी कर पाएगी। इसलिए पूर्णात्मा बनना बहुत ही महान विषय है आपने बताए। हम सभी इस श्वास के ऊपर ध्यान के साधना के द्वारा उस स्थिति तक पहुंचने वाली है, पहुंच भी जाएंगे। लेकिन हमें सीरियसली ये ध्यान करना चाहिए। पत्री जी ने जो मार्ग बताए वो हम सीरियसली लेना चाहिए, उस मार्ग पे चलना चाहिए। इसलिए इस मार्ग में आए हैं हम लोग
प्रतिदिन इसी श्रद्धा से ध्यान कर रहे हैं। धरती पे मानव का मानव यही प्राप्त करना चाहिए, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, धन हो या धनवान हो या गरीब हो, अधिकार में रहने वाला हो या अधिकार में न रहने वाला हो, हम सब यह ध्यान करना चाहिए। इसलिए मैं आप बार बार हमें बोलते हैं कि हम सब 350 जन्म पार चुके हैं, वैसे लोग ही इतनी श्रद्धा में ध्यान करते हैं, तो मैं यह जरूर ध्यान में रखूंगी। यदि हम श्रद्धा के साथ रहे तो हम शीघ्र ही उस स्थिति में पहुंच सकते हैं। हमारा जन्म को धन्य कर सकते हैं, मतलब दुख से शाश्वत रूप से बाहर आकर शाश्वत आनंद मार्ग में प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा मार्ग बताने वाला हमारा ब्रह्मर्षि पत्री जी को हम बार बार नमन करते हैं, धन्यवाद भी करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि मतलब वह ब्रह्म पूर्ण है। सर एक मिनट, हम सभी जीव है ब्रह्म, और आगे बताए ब्रह्म पूर्ण क्या है। हम ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म से ही हम आए हैं, तो मतलब जीव भी पूर्ण है। इसको और विवरण में बताए, हम सभी जीव है, इस पूर्णात्मा से बिछड़े हुए हैं, अलग उनसे ही उत्पन्न आए हैं। इस शरीर में प्रवेश करने की वजह से हम इस शरीर को कहते हैं। इस शरीर में जो जीव है वो पूर्णात्मा से आए हैं। शरीर में हाँ अंतरात्मा है तो जीव कहते हैं। हाँ हाँ, राइट। वी आर अलाइव बिकॉज ऑफ द जीव विच हैज कम फ्रॉम पूर्णात्मा। थैंक यू मैडम। ओके सर, थैंक यू सर। धन्यवाद गीता जी। और चाहिए तो अनुपमा। अनुपमा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम सर, प्रणाम सर, आप सबको प्रणाम। सर, ये जो श्लोक जिसके बारे में आज आपने बताया, हम लोग कई बार इस श्लोक को जब हम यज्ञ हवन करते हैं तो हर बार आखिरी में इस श्लोक को बोलते थे, लेकिन इस श्लोक का जो सही मीनिंग है वो आज समझ आया कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। मतलब हम जो है वो उस पूर्णात्मा से पृथक हुए हैं, अलग हुए हैं, और उसके ही अंश हैं हम, या वही हम हैं, हम अलग नहीं हैं उससे। और उसके साथ साथ जो एक बिगर पिक्चर या एक बिगर चीज जो मुझे समझ में आई कि हम जो है क्या, हम बीमार हैं, हम तकलीफ में हैं, हम दुख में हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हम उसी सब चीजों में फंसे हुए हैं। इस चीज को छोड़ के कि हम कौन है उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। इंस्टेड ऑफ दैट हम उस सब चीजों में फंस गए कि हमारा क्या है, हो रहा है, हमें ये सब नहीं मिल रहा है, हमें ये सब नहीं मिल रहा है, हम बीमार हो रहे हैं, हमें ये सब हो रहा है, तो हम उसी चीजों में फंसे हुए हैं। लेकिन एग्जैक्ट जो चीज है उसके ऊपर हम पहुंच नहीं पाते। और जो अगर हम जैसे सर बोलते हैं कि हम 350 जन्म पार कर चुके हैं, तब जाकर के हम इस लेवल पे आए हैं। और जो बहुत से लोग हैं जो इतने लेवल को पार नहीं कर पाए हैं, वो इस अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझ पाते हैं कि हम कौन है एग्जैक्टली। तो ये एक चीज जो है वो मुझे समझ आई है, जो मुझे लगता है कि ये है। और सर ने जैसे भी इसके बाद में भी सर ने एक बात बताई कि जैसे एक मटका है, मटके के अंदर जो आकाश है वही आकाश एग्जैक्टली, जो अखंड आकाश है वही आकाश मटके के अंदर भी है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है कि वो आकाश जो मटके के अंदर है और जो पूर्ण आकाश है वो एक ही है। उसको समझना और उसको आत्मसात कर लेना। तो उस आत्मसात करने के बाद में फिर मुझे लगता है जो हमारी परेशानियां हैं, जो हमारे दुख हैं, जो भी चीजें हैं, वो बहुत बहुत ही छोटी या माइन्यूट हो जाती हैं, जिसको हम अवॉइड मतलब जो हमें शायद समझ ही नहीं आती है कि ये हमारी परेशानी है। ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है आज के उस। थैंक यू मैडम। धन्यवाद अनुपमा जी। Exactly, you have understood the meaning of it. Yes. The essence you have narrated now. Yes. Thank you, sir. Very clearly you have understood this. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you very much. Close chese Charan. Yes. Hi, sir. Hi, Shonara. Ravi. Yes, sir. Yes, sir. Have you heard this? Yes, sir. Everything. Then you narrate it. Okay. Essence. Okay. Anupama has told the essence clearly. Okay. सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज कम शब्दों में अगर आज के क्लास को बताया जाए तो यह है कि एक पूर्णात्मा है जिसके अंदर से निकले हुए हम सभी अंशात्मा हैं। पूर्णात्मा सर्व तरीके से पूर्ण है
और अंशात्मा भी सर्व तरीके से सर्व रूप से पूर्ण है। हमें अंशात्मा को उस पूर्ण होने का जो ज्ञान है वह प्राप्त करने के लिए इस श्वास आधारित ध्यान को करना होगा। जब हम श्वास आधारित ध्यान करेंगे तो उसके 3 चरण हैं। पहला चरण है जिसमें हम शून्यता को प्राप्त होते हैं, जिसमें जब हम ध्यान करते हैं तो मन शून्य होता है। हमें अहम ब्रह्मास्मि वाक्य जो वेद का है उस फीलिंग को हम ज्ञात कर पाते हैं। जब इस ध्यान को और तीव्रता से करते हैं तो शून्यता की और गहराई में पहुंचते हैं, जिसे परिशून्य कहा जाता है। जब ऐसे लोग जब उस स्थिति को प्राप्त करते हैं तो उन्हें तत्वमसि नाम का वेद वाक्य है उसका एक्सपीरियंस होता है। और गहरा जब ध्यान और तीव्र ध्यान करते हैं तो शून्यता की और गहन अवस्था, जिसे महापरिशून्य अवस्था कहते हैं, उसकी प्राप्ति होती है। ऐसे लोग चैतन्य रूप बन जाते हैं और खल सर्वम खलविदम ब्रह्मा ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं। वह स्थिति अंत स्थिति होती है जिसे महापरिशून्य स्थिति, और ऐसे लोग महापरिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं। हम जितने अंशात्माओं को जानते हैं, जितने देवों को जानते हैं, जीसस, मोहम्मद, बुद्ध, नानक और अन्य, ये सब महापरिनिर्वाण स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। जीसस ने अपने वाक्य में कहा है, मैं और मेरे पिता एक ही हैं और मैं और तुम एक ही हैं। हम सभी लगभग 350 जन्म ले चुके हैं, सत्गुण के उस चरण पे पहुंच चुके हैं जहां पे हम यह सब समझ पा रहे हैं। हमें अगर अपनी ध्यान स्थिति को और तीव्र करते हैं तो बहुत जल्द हम उस महापरिनिर्वाण स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। अंत में हम सभी पत्री जी का अनेक धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वह यह ज्ञान हम तक लेकर आए हैं। और साथ में मैं तत्वर्ती सर को भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि वह इस ज्ञान को हम तक पहुंचा रहे हैं। थैंक यू सर।